So very good morning. Hello everybody. You are listening right now to the Telegram live class, and this is brought to you by www.dentalexams.in. And I am your host, Dr. Mohan Muthan, once again on this side. And as we have gone through recent topics like pharmacology, हमने cover किया था about anticoagulants. सर्जिकल पार्ट भी हमने कुछ कवर किया था रिलेटेड टू द एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स या डिफरेंट सर्जरीज के रिलेटेड जो भी कुछ होते हैं एंड राइट नाउ वी आर आल्सो लाइक डूइंग द सेम थिंग बेसिक और डेंटल साइंसेस दोनों सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर एज अ बूस्टर कॉम्बो बूस्टर. तो आज का टॉपिक्स भी वैसे ही रहेगा. आई नो लाइक इट्स लाइक हॉलीडे सीजन, क्रिसमस है, ईयर एंडिंग भी है, सो एवरीबडी जस्ट लाइक enjoying family time, schools are off, for a week maybe. जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के, गवर्नमेंट के भी जितने भी शायद so let me just like try out something कि मुझे वो स्क्रिप्ट लेनी चाहिए बाहर. फेशियल स्पेस इन्फेक्शंस भी हमने कवर किए थे ना yesterday, so that was a very good topic to read and revise. And right now we are going to start drugs used in anemia. Like yesterday we have covered anticoagulants. Heparin हमने देख लिया, warfarin हमने देख लिया, different types of their indications, contraindications देख लिए, adverse drug effects भी हमने देख लिए. So right now let's move toward pharmacology booster drugs used in the anemia. So we know like iron deficiency anemia is there, and the cause of iron deficiency anemia is inadequate iron intake or absorption or loss due to sometimes bleeding. Okay, so treatment is simply iron supplementation. So उसमें what are the different types? So oral iron में रह सकते हैं like ferrous sulfate, ferrous gluconate, and ferrous fumarate. So these are the oral drugs which are given in the iron deficiency anemia. Then dose उसके होते हैं typically 100 to 200 milligrams elemental iron per day. So administration tips है simply taking it with vitamin C to enhance the absorption, and avoiding with like calcium or antacid or tea even. तो उसकी वजह से वो शायद कुछ उसमें इंटरेक्शंस होते हैं. सो कैल्शियम के साथ में नहीं लेना चाहिए, एंटासिड्स के साथ में नहीं लेना चाहिए, और विटामिन सी अगर हुआ तो वो इट इंक्रीजेस एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइक आयरन. और पेरेंटल आयरन जो होता है आईवी रूट से फॉर सीवियर डिफिशियंसी और माल एब्सॉर्प्शन, सो आयरन सुक्रोज कैन बी गिवन, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज कैन बी गिवन, और आयरन डेक्स्ट्रॉन कैन बी गिवन पेरेंटरनली. ओके, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ऑब्वियसली. इंजेक्शन साइट रिएक्शन साइट हो सकती है, और हाइपर सेंसिटिविटी रेयरली होती है. सो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में ड्रग्स विच आर गिवन फेरस सल्फेट, ferrous gluconate, and ferrous fumarate. These are the like given through orally. और दूसरे जो है iron sucrose, ferric carboxymaltose, and iron dextran, they can be given parenterally. Okay. Then also we have vitamin B12 deficiency anemia, also known as megaloblastic anemia. So the cause of this megaloblastic anemia is a dietary deficiency or malabsorption sometimes, and treatment is like vitamin B12 supplementation like cyanocobalamin जो होता है, तो oral दिया जा सकता है, intramuscular दिया जा सकता है, और even like subcutaneous भी दिया जा सकता है. And the dose is like 100 microgram intramuscular every week for up to 4 weeks, and then monthly. So hydroxycobalamin is preferred for longer effect. तो उसके भी डोज सेम वही है, 1000 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर है. साइड इफेक्ट इसके कुछ नहीं होते हैं. ठीक है. सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और समटाइम्स लाइक माल एब्सॉर्प्शन हुआ तो पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 से, तो साइनोकोबालामाइन और हाइड्रोक्सीकोबालामाइन इज गिवन. देन फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया. सो कॉजेस ऑफ दिस लाइक पुअर डाइट, pregnancy is one of the major cause of folic acid deficiency anemia, or sometimes drugs like methoxytrate or phenytoin.
So methoxytrate and phenytoin, these are the drugs which can cause folic acid deficiency anemia. और ड्रग्स बेसिकली उसमें क्या आप दे सकते हैं, फॉलिक एसिड ओरली और इंट्रामस्कुलरली, और डोजेस 1 to 5 मिलीग्राम पर डे फॉर 4 months इट्स गिवन लाइक, और साइड इफेक्ट्स बहुत कम ही होते हैं इसके. ओके, देन वी हैव एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसीजेस ACD. एक उसके कॉजेस है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो सकती है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, और उसकी ट्रीटमेंट सिंपली है कि इरिथ्रोपोएसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, सो इपोटोइन अल्फा, डार्बेपोएटिन अल्फा, दिस कैन बी गिवन सबक्यूटेनियसली और इंट्रावेनसली. हाइपरटेंशन है इसका साइड इफेक्ट, और थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिंग इरिथ्रोपोएटिक स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, बट क्रोनिक के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है. Okay, then we have sickle cell anemia, and cause of that sickle cell anemia already we know, like it's a genetic disorder leading to the abnormal hemoglobin. और उसकी ट्रीटमेंट है हाइड्रोक्सीयूरिया कैन बी गिवन, और लाइक which increases the fetal hemoglobin production. साइड इफेक्ट्स होते हैं माइलोसप्रेशन एंड स्किन अल्सरेशन, और समटाइम्स लाइक फोलिक सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं फोलिक एसिड का. देन वी हैव aplastic anemia, which is the like cause उसका होता है like bone marrow failure, और simply immunosuppressive therapy दी जाती है. ड्रग्स लाइक ATG, एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन, और साइक्लोस्पोरिन कैन बी गिवन. साइक्लोस्पोरिन इज गिवन इन aplastic anemia. ओके, साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी व्हेन वी आर कंसीडरिंग साइक्लोस्पोरिन, इसके ऊपर अच्छा खासा MCQ पूछा गया है. और समटाइम्स लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो advised, like definitive treatment for the eligible patients. Okay, then we have hemolytic anemia. So cause is like increased destruction of RBCs, that is sometimes like autoimmune भी हो सकता है, और treatment includes corticosteroids like prednisone for autoimmune hemolytic anemia, and folic acid obviously to support RBC production, or sometimes immunosuppressants like rituximab for the refractory cases. So rituximab is like immunocompressant suppressant, sorry, given in the hemolytic anemia. Then we have thalassemia also. So cause of thalassemia is again like genetic mutation affecting hemoglobin production, और सिंपली ट्रांसफ्यूजन थेरेपी दी जा सकती है, रेगुलर RBC ट्रांसफ्यूजन्स, या समटाइम्स लाइक आयरन चिलेशन थेरेपी दी जा सकती है. डेफोरक्सामाइन IV दिया जा सकता है, और डेफारक्स सिरॉक्स ओरली दिया जा सकता है, बट हियरिंग लॉस इसमें आ जाता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी आते हैं. आयरन चिलेशन थेरेपी इन थैलेसीमिया. ओके, सो की टिप्स है इसमें लाइक मॉनिटरिंग द CBC, monitoring the reticulocyte count, and serum ferritin regularly. Or dietary supplements, obviously emphasizing nutrient-rich diets like iron, B12 और folate दे सकते हैं. और sometimes like combination therapy दी जा सकती है, treating the underlying causes like infections या chronic diseases. और सबसे important like patient education, like adherence to the therapy and awareness of the side effects, because like it's a long-term treatment, जल्दी नहीं cover होती है. So this was like just a basic thing. Let's say कि फार्मेकोलॉजी में जैसे मैंने कहा कि like न्यू फॉर्मेट के हिसाब से तो पता नहीं है, बट ओल्ड फॉर्मेट में तो उसको बहुत ज्यादा वेटेज दिया है ही उसका. एंड द फार्मेकोलॉजी ऑफ CVS, ब्लड, एंटीबायोटिक्स लाइक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उसके बाद में हार्मोन रिलेटेड जितने भी एंडोक्रिनोलॉजी के डिसऑर्डर्स पैथोलॉजीज होती है, और उसके रिगार्डिंग जो फार्मेकोलॉजी है, दीज आर द मेजर टॉपिक्स विच हैव टू बी रेड अगेन एंड अगेन. ओके, तो ये वाला तो फर्स्ट हमने कर ही दिया है कवर. सो दैट वाज द थिंग. Yesterday I was talking about some of the like life experiences of mine when I was working as a dental surgeon, medical officer at COVID. PCMC में मैं काम कर रहा था, and lot of things I have actually shared. काफी मुझे personally भी वो अच्छा ही लगा, because it's a very good thing कि शेयर किया जा सकता है, तो क्यों शेयर नहीं करना ना. दैट्स इट. It may like sound good or sometimes strange कि इस चैनल पे ऐसी चीजें
publish karna, whether it's like good or not. But I think this is the point of like that thing कि अगर सुनना चाह रहे हैं तो speakers are always ready. So this is again a kind invitation to each and everybody who is willing to get, let's say, play their role or part as like a live teacher, live tutor, podcaster. It's like let's say a quite good initiative कि आप उसको क्या कर सकते हो, let's say अच्छी तरह से उसको like when I considering myself, like last year I was not a podcaster, obviously. Last year मैं जो था simply मैं sort of like let's say not a educator कहूँगा मैं, but I was less like a part of a community where education is the only agenda कि हम educate ही करने वाले हैं खुद को एक दूसरे को. So but when I am just like I was looking at something like मेरे टीचर थे, तो सडनली क्या हुआ, वो टीचर मुझे मिलने आए लाइक फॉर हिज ट्रीटमेंट, और उन्होंने थोड़ा सा मेरे साथ जो डिस्कशन किया एट दैट टाइम. सो दैट स्पार्क समथिंग इनसाइड मी बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर. मुझे पहले से टीचर बनना बहुत अच्छा लगता था बिफोर लाइक एंटरिंग इनटू दिस वर्ल्ड एक्चुअली. ओके, तो उसके बाद में क्या हुआ, लेट्स से कि जैसे ही मैंने वो चीजें थिंक करना स्टार्ट कर दी कि लाइव क्लासेस, टीचिंग एंड ऑल दैट स्टफ इज लाइक व्हाई इट्स लाइक सो इम्पोर्टेंट ना. तो बस मुझे लगा कि शायद मैं अपने नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ग्रुप के लिए क्यों ना लाइव क्लास स्टार्ट कर दूं. ओके, सो दैट वाज द थिंग. पॉडकास्ट जैसा तो मैं शायद लास्ट कपल ऑफ मंथ में स्टार्ट किया था, शायद अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया था वो लाइक लाइव टेलीग्राम. मुझे पता था कि इट्स लाइक देयर, बट आई वाज नॉट अवेयर कि इसको इतनी अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है फॉर रिकॉर्डिंग, पब्लिशिंग ऑडियोज, वीडियोज, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो दैट वाज द लेट्स से थिंग. शायद इसके बाद में हम थोड़ा सा जिप्सम का, रेजिन्स का, एक्रिलिक रेजिन्स, कंपोजिट रेजिन्स, वो टॉपिक कवर करने वाले हैं. एंड इफ यू आर जस्ट लाइक वाचिंग listening right now, so welcome to the Telegram live class. Like we are trying to read, we are trying to revise, and we are trying to repeat both the things, reading and revision. हम repeat ही करने वाले हैं. So that is the thing. तो simply ये जो सब चीजें हैं एक्चुअली, तो आई वॉज जस्ट लाइक थिंकिंग कि एक काफी अच्छा चीज है मेरे लिए भी. राइट नाउ यू कैन जस्ट लाइक लुक एट द रोड ट्रैक जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वॉक कर लेता हूँ अर्ली मॉर्निंग में. अच्छी खासी वाइब होती है यहाँ पे. सो वेन लाइक कल शायद मैंने जो भी कुछ कहा था उसके बाद में शायद कुछ चीजें मुझे लगा कि और अच्छी तरह से वो शेयर करनी चाहिए. तो लेट्स लाइक थिंक अबाउट दैट. तो व्हेन आई वाज लाइक अ कोविड, लाइक उसके पहले जैसे मैंने कहा था कि व्हेन आई वाज लाइक क्लिनिकल असिस्टेंट वर्किंग इन द ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट्स, और कितने अच्छे खासे मुझे वहाँ पे टीचर्स मिले थे. साथ में मेरे ग्रुप पार्टनर था, जैसे मैंने बताया था, वो वहाँ पे छूट गया था when I was just like trying to listen my episodes ना. तो मुझे लगा कि जो थॉट मुझे बोलना चाहिए था वो रह गया, मैं बाकी कुछ बोलता रहा. तो पेरियोडिक ट्रीटमेंट्स में जब हम लाइक वी वर कवरिंग एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स ना, एंड डिफरेंट कोडिंग 06, 08, 10 उस साइज की. तो सिंपल एक मिसअप क्या हुआ था, लाइक माय रूम पार्टनर वाज पोस्टेड इन पेरियोडोंटिक्स डिपार्टमेंट, और हमने जहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लाइक वी वर from like we both were from the same college. ग्रेजुएशन जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था, तो देयर वाज लाइक पेरियोडिक डिपार्टमेंट, और वहाँ पे अच्छे खासे ट्रीटमेंट्स लाइक हमने की थी. पर्सनली तो मैंने ज्यादा ही इंटरेस्ट था मुझे, तो मैंने किया था वो, बट लाइक अदर पीपल इंटरेस्टेड
पेरियोडोंटिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिकली एंडोडोंटिक तो काफी डिफिकल्ट होती है किड्स में व्हेन दे आर अराउंड लाइक 2 years ऑफ एज, 3 or 5 years ऑफ एज, उनको मैनेज करना काफी काफी डिफिकल्ट होता है। बट दैट इज द बेस्ट थिंग। मुझे अभी भी याद है कि मेरी एक पेशेंट थी, 2 से 3 साल की छोटी सी बच्ची थी, लाइक शी वाज हैविंग लेफ्ट मैंडिबुलर कुछ उसको स्वेलिंग थी। सो आई हैव जस्ट लाइक डन पल्पेक्टोमी आई वाज डूइंग, एंड शी वाज सो लाइक इतनी अच्छी थी, इतनी समझदार थी, लाइक शी वाज understanding each and everything what is going on. Many times like kids are very anxious, they are very, let's say, tantrums दिखा दे डेंटल क्लिनिक्स में, especially when they are looking at like, let's say, doctors, aprons, masks, gloves, and they basically, let's say, डरते हैं वो। बट शी वॉज टोटली डिफरेंट। तो फर्स्ट इनिशियल अपॉइंटमेंट में ओपन किया था, लेट्स से सेकंड में मैंने उसे प्रॉपरली बीएमपी किया था, एंड थर्ड फोर्थ में शायद उसको मैंने फिनिश भी कर दिया था। तो लास्ट अपॉइंटमेंट थी, एंड लाइक शी यूज्ड टू कम विथ हर मदर, वो दोनों ही आते थे अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 8-8:30, और टिल 12 तक, 12 बजे तक ही हम सब वो पेरियोडोंटिक्स में काम करते थे। आफ्टरनून में शायद कुछ ज्यादा होता ही नहीं था, तो मस्त रिलैक्स करते थे, वहां पे पढ़ते थे, डिस्कस करते थे स्टाफ से, दूसरे डिपार्टमेंट में विजिट करते थे, बिकॉज लाइक पीरियोडोंटिक वाज नॉट अ माइनर पोस्टिंग ड्यूरिंग इंटर्नशिप, बट लाइक स्टिल पेशेंट्स जल्दी निपट जाते हैं छोटे बच्चों के, है ना, ज्यादा लंबी ट्रीटमेंट नहीं होती, लाइक एंडो और सर्जिकल पोस्टिंग जैसे होती है इंटर्नशिप में, दैट सॉर्ट ऑफ। तो वो मिशाद जो मैं भूल गया था, सो वो बच्चा था सिंपल सा, और मेरा रूम पार्टनर वाज लाइक ट्रीटिंग। तो सडनली उससे क्या हुआ, वो जो फाइल थी वो उससे स्लिप हो गई, ग्रिप, एंड एक्चुअली दैट चाइल्ड swallowed दैट एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट। तो पता ही नहीं वो कहाँ पे गई अंदर, एंड इट वाज जस्ट लाइक आवर फर्स्ट वीक। तो इतना इतना बैड इंप्रेशन हुआ, लाइक ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्टर, ऑलमोस्ट लाइक ईच एंड एवरीबॉडी वर्किंग एट दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाज लुकिंग एट दैट डॉक्टर ना, कि ऐसा कैसा इसने कर दिया, कि बच्चे ने वो कैसे नहीं कर लिया। सो आफ्टर दैट आई हैव गॉन थ्रू, लाइक मुझे काफी काफी सीरियस भी लगा था, लाइक एवरीबॉडी वाज जोकिंग कि ऐसे कैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ गया, एंड दैट सॉर्ट ऑफ, या तू भी तेरे दोस्त जैसा ही है, ऐसा भी मुझे बोलते थे, लाइक मैं क्लिनिकल। तो दैट वाज क्वाइट लाइक डिप्रेसिंग समटाइम्स, कि आप जहाँ से पास आउट हो चुके हो, 5 साल आपने जहाँ पे दिए हैं, एंड दैट इज नथिंग, वहां से आपकी स्टार्ट होती है जर्नी की, आपको कुछ नहीं पता होता है। तो आई थिंक लाइक उसके बाद में मैंने ट्राई किया कि जब भी मैं पीरियोडोंटिक की ट्रीटमेंट करता हूँ यूजिंग लाइक हैंड फाइल्स, तो मैं क्या करता हूँ, उसके टिप पे एक होल होता है, तो वहां पे मैं क्या एक थ्रेड डाल देता हूँ। आई यूज टू जस्ट लाइक इंसर्ट पर्टिकुलर फ्लॉस, मैंने ले लिया था व्हेन आई वाज लाइक अबाउट टू गेट पोस्टेड इन दैट पीरियोडिक है। और अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी जब मैं करता हूँ, व्हेन आई हैव डू व्हेन डू आई डू दीज पल्पेक्टोमी थिंग्स ऑन किड्स, तो मुझे पता है कि वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, खेलते डुलते रहते हैं, लाइक दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उसके बीच में हमारी ग्रिप जो है वो स्लिप हो सकती है। सो आई जस्ट लाइक थॉट कि उसे अगर थ्रेड से या फ्लॉ से बांधा जाए, ऑलमोस्ट लाइक 1 फीट का थ्रेड अगर बाहर रहेगा, सो इवन इफ दैट इज लाइक स्लिप्ड या वो अंदर भी गया, कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप उसको अंदर नहीं ढकलते, बट वंस लाइक एनीथिंग पासेस दैट थ्रोट के अंदर थोड़ा भी आ जाता है, तो सब एक जेन्युइन थिंग कि आप कफ कर सकते हो, बट अगर थिन या स्टिकी जैसा कुछ रहा तो वो अंदर तक जा सकता है ना। तो दैट थ्रेड हेल्प्स टू लेट्स से ट्रैक दैट पर्टिकुलर व्हाट यू कैन कॉल इट एज लाइक एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट, स्पेशली फाइल्स तो होती ही है, तो यू कैन जस्ट लाइक होल्ड दैट थ्रेड इन ऑर्डर नॉट टू जस्ट लाइक उसे अंदर तक जाने के लिए आप रोक सकते हो होल्डिंग दैट थ्रेड, दैट इज द थिंग। और अंदर तक नहीं जाने के लिए वो काफी काफी अच्छा स्टॉप जैसा यूज होता है। सो दैट वाज आई वाज जस्ट लाइक थिंकिंग, वो मैं बोलना चाह रहा था बट वो रह गया था। और उसके बाद में शायद लेट्स से उसके बारे में मैंने कहा कि औरतों की हमारी जैसे पोस्टिंग हुई थी, पेरियो की भी अच्छी खासी पोस्टिंग हुई थी एज ए क्लिनिकल असिस्टेंट। तो वहां पे एक्चुअली क्या हुआ, लाइक देयर वाज अ पेशेंट, ऐनक का पेशेंट था,
एंड देयर वाज लाइक लेट्स से पीजी स्टूडेंट। तो उसके पास जैसे मैंने बताया कि मैम लाइक दिस इज लाइक वेरी गुड केस, एक सूडो मेम्ब्रेन ही दिख रही है, नेक्रोटिक मेम्ब्रेन पूरे जिंजाइवल मार्जिनल जिंजाइवल पे क्या हो रही है दिख रही है। तो लाइक शी वाज वेरी इंटरेस्टेड, उसे काफी काफी अच्छे लाइक चीजें बताई थी लाइक लाइक इट्स अ वेरी इट्स a सैड थिंग ऑल्सो कि व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग तो हमारे पीरो डिपार्टमेंट में इनिशियली हैंड स्केलिंग और बाद में सिर्फ अल्ट्रा को सोनिक स्केलिंग ही हमें बताई गई थी, नॉट लाइक एनीथिंग वाज लाइक शेयर्ड, लाइक क्राउन लेंथनिंग क्या होती है, रिसेक्टिव ऑस्टियस सर्जरीज क्या होती है, लाइक देयर वाज अ पीजी सेक्शन सेपरेटली, तो वहां पे वो ऑब्वियसली बताई जाई थी, जा रही थी, लाइक बट बीइंग डेंटल स्टूडेंट बीइंग इंटर्न लाइक वी वर जस्ट लाइक doing scaling and polishing। इतने पेशेंट रहते थे, ईच एंड एवरी पेशेंट लाइक हु वाज प्रेजेंटेड ओपीडी, उसे पहले तो ट्रीटमेंट के पहले तो स्केलिंग के लिए भेजा जा सकता था, जाता था। सो वी वर बिजी सो एंड वी वर आल्सो हैप्पी कि ज्यादा थिंक नहीं करना पड़ता, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हेडफोन डाल दो, गॉगल लगाओ, मास्क पहनो, पेशेंट भी ज्यादा कुछ नहीं पूछता, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी व्हाइल लाइक गेटिंग देयर टीथ क्लीन, बस जाके जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना है। सो द थिंग अबाउट दैट फोटो, तो मैंने जो फोटो निकाला मुझे अभी भी याद है कि चीक रिट्रैक्टर था शायद, उसको अप्लाई किया, लगाया उसको, 4 से 5 फोटो डिफरेंट एंगल से निकाले एंड आई जस्ट लाइक ट्रांसफर दैट पेशेंट पर्टिकुलरली टू द जो भी रेजिडेंट थे वहां पे, पेरियो वाज लाइक रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद में उन्होंने एचओडी को जाकर दिखाया, अच्छी केस उनको मिल गई फॉलोअप्स के लिए, एंड सडनली आफ्टर 10 इयर्स, शायद मैं 2014 में कुछ उसको क्लिक किया था वो फोटो को, स्मार्टफोन थे जब, सोनी एक्सपीरिया का मोबाइल था मेरे पास उस टाइम पे। तो नॉट लाइक आफ्टर 10 इयर्स बट 6 7 लाइक आई वाज रिसर्चिंग कि व्हाट इज एक्चुअली ऑनलाइन अबाउट मी। तो मैंने सर्च किया तो वो सिंपल सा फोटो मैंने अपलोड किया था विकीपीडिया पे, इन ऑर्डर टू शेयर कि आप इस फोटो को कहीं भी यूज कर सकते हो। मुझे ये पता भी नहीं था बट लाइक आई जस्ट वांटेड शेयर दैट आई हैव डन माय क्लिनिकल असिस्टेंटशिप वेरी परफेक्टली। मुझे लगा कि मैं वहां से कुछ तो भी अच्छा सीखा ही हूँ, सिंगल 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 पेशेंट, सिंगल केसेस, सिंगल फोटोज, जो भी कुछ मैंने वहां पे सीखा है, तो मुझे लगा कि मुझे वो बताना चाहिए लोगों को। लाइक इट्स वाज लाइक क्वाइट अ गुड थिंग फॉर मी टू नोटिस कि अरे कुछ अलग ही दिख रहा है ये ना। तो आफ्टर 7 इयर्स आई गॉट दैट फोटो। उसे एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लाइक ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन की, ऑस्टियोपैथिक एसोसिएशन है अमेरिका की, तो उन्होंने उस फोटो को पब्लिश किया था उनके एक लिटरेचर में, थीसिस में या डिसर्टेशन में, और वो मुझे क्रेडिट दिया गया था वहां पे। सो आई वाज लाइक सो नॉट सरप्राइज बट आई वाज सो हैप्पी कि यार मैंने एक सिंपल सा फोटो क्लिक किया, 6 7 साल बाद वो किसी अदर कंट्री में किसी पेपर में यूज किया गया, वन ऑफ द बेस्ट फोटोज आई हैव क्लिक्ड। तो फोटोग्राफी तो मेरी पर्सनली हॉबी तो है ही, बट लाइक आई नो वेरी वेल कि देयर आर मेनी मेनी डेंटल प्रोफेशनल्स हु आर टीचिंग, हु आर कंडक्टिंग सेशंस फॉर मोबाइल फोटोग्राफी, स्पेशली फॉर द डेंटल पेशेंट्स, डेंटल स्टूडेंट्स, कि वो क्लिनिकल केसेस डॉक्यूमेंटेशन कितना कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दैट वाज द थिंग। वो आप एकदम कॉर्नर में जो गर्ल देख रहे हो, लाइक शी इज right now you can just like see she is coming. So these are my furry friends, अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाता हूँ। एक इस साइड भी है, बैठी हुई सोई वो, एंड दे आर हैविंग लाइक राइट नाउ पपीज, 8 से 9 पपीज है वहां पे, तो उनको कभी कभी मैं फीड कर देता हूँ। लाइक दे आर क्वाइट काइंड बट दे नेवर अलाउ मी टू टच देम ना। हाँ, पपीज को मैंने रिसेंटली क्या किया था, टच करना चाहा तो लाइक दे अलाउड मी, तो दैट इज द थिंग। थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, 30 मिनट्स का हो गया है, तो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ज्यादा वीडियो स्ट्रीम करने के बाद में वो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई विल बी जस्ट लाइक लेट्स से इसको स्टॉप कर देता हूँ। लाइक यू आर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर गाय नेक्स्ट, पपीज भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं, तो आई विल ट्राई टू जस्ट लाइक एंड और फिर से स्टार्ट कर देते हैं।